دعا ہے کہ خداوند آج میں جتنا کلام سنوں روح القدس کے وسیلے سے زندگی گزارنے سے ہماری زندگی میں ہم کیسے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بسر کرتے ہیں۔ آج بات بول 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 میرے نال بات بول، وہ ضرور بولے گا جب آپ نے دعا کی ہے، مانگا ہے، تو پھر آج آپ نے اس طرح اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے کر بیٹھنا ہے کہ خداوند آج میں خالی نہیں جانے والا، نہیں جانے والی، آج ضرور کلام کے وسیلے سے مجھ سے بول اور کلام کر اور بتلا مجھ سے، میری زندگی سے، میرے بچوں کی زندگی سے، میرے ساتھی کی زندگی سے، میری گھر اور گھرانے کی زندگی سے تو کیا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اگر آپ ایسی سوچ لے کر خداوند کے حضور میں بیٹھے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اب آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، سنید کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو سکھائے گا کہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے ہمیں کیسے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ کلام مقدس میں سے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گا، رومیو اور اس کا 8واں پہلی جو 2 آیت ہیں میں پڑھوں گا، سنیے گا۔ کلام میں یوں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہاللیلویا۔ کتنی خوبصورت بات جو خدا آج آپ سے، مجھ سے اور بہت سارے سننے والوں جو پوری دنیا کو اس کلام کو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب کی بات کر رہا ہے، وہ آج کی بات کر رہا ہے، آج کی قبولیت کی، آج کی نجات کی، آج جو کلام یہاں پوری دنیا کے اندر 400 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ جو کلام کو سن رہے ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب جو خداوند یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ پھر ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے ہو میں تو خداوند یسوع مسیح میں ہوں اور پھر کیا مجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے، میرے گھرانے پر بھی سزا کا حکم نہیں ہے، میرے بچوں پر بھی سزا کا حکم نہیں ہے، میرے بزنس پر بھی سزا کا حکم نہیں ہے، میرے گھر پر بھی سزا کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ اسے ریسیو کریں گے تو اگر کوئی حکم ہوگا تو وہ بھی ٹل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اگر کوئی حکم چلانے والا ہوگا تو وہ بھی ٹل جائے گا۔ کلام میں لکھا کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہیں آئے گا۔ ہاللیلویا۔ تو وہ نکارا ہو جائیں گے، لیکن جب ہم کہنا شروع کریں گے، شک نہیں کریں گے، کہتے شک نہ کر، شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اور ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ اسے کچھ خداوند سے ملے گا، کیونکہ وہ دو دلا اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے، اور بے قیام نہیں ہونا، کیونکہ یہ کلام کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ کس نے آزاد کر دیا؟ مسیح یسوع نے ہمیں آزاد کر دیا، کیونکہ شریعت تو ہمیں نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بچنا ہے، موت ہے۔ اس نے شریعت نے ہمیں نشاندہی کر دی، اسے بتایا یہ موت ہے۔ اگر آپ گناہ
गुनाह करोगे तो मौत आपको आज पाएगी। गुनाह की मजदूरी मौत है। चलिए, लेकिन क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी सलीब पर जान देकर, लहू बहाकर हमें आजाद कर दिया है। जब हम आजाद हैं तो फिर हमें आजाद ही अपनी जिंदगी को बसर करना है, सनू क्या नहीं हुआ। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। जिस जिंदगी के अंदर रोया नहीं वो भी बेकैद है। हमें रोया वाले होना चाहिए। मेरी ये रोया है, मेरी ये आस है, मेरी ये उम्मीद है कि मैं खुदावंद के लिए कुछ करूं, मैं खुदा के घर के लिए कुछ करूं, मैं खुदा के घर में जा सकूं, मैं बरकत पा सकूं, मैं कलाम को सुन सकूं। कुछ तो हो जिंदगी में। ये जिंदगी, कुछ लोग कहते हैं ये जिंदगी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि रूह कुदस के बगैर जिंदगी नहीं। पाना है जो रूह का बसा तो यीशु की हजूरी में आ। अगर रूह कुदस चाहिए, रूह कुदस के वसीले से जिंदगी चाहिए, तो फिर हमें खुदा के घर में आना जरूर है, उसके कदमों में आना जरूर है। जब तक हम नहीं आते खुदा के हुजूर में तो फिर चेहरे तो मुरझाए होंगे, चेहरे लटके होंगे। लेकिन कब? जब खुदा के हुजूर में आकर हम कलाम को पढ़ेंगे, हम कलाम को सीखेंगे, तो तब ही जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। तब हमें पता चलेगा कि रूह का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर कैसी बरकत लेकर है। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान दी, मौत और कब्र पर उन्होंने फतह पाई और जिंदा हो गए, तब जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ वादा किया, उसने कहा, जब यीशु ने अपने शागिर्दों को रूह कुदस इनाम में देने का वादा किया, वादे तो हैं लेकिन वादा करके जो निभाए, खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया और उसने वो वादा निभाया। कहने लगा, मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार रूह कुदस। याद रखिए, उसने कहा तो उसने मददगार, तसल्ली देने वाला, वो हमारा रहनुमा है, वो हमारा उस्ताद है, सलाहियत इस्तेमाल की। रूह कुदस हमेशा अपने आप को उन्हीं हदूद में रखता है। पाकरू की कोई हद तो है, पाकरू भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं करता। जब तक हम रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर इजाजत नहीं देते, तब तक पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आता। वो कभी भी ईमानदार की मर्जी और शख्सियत के खिलाफ काम नहीं करता। हमने देखा कि वो काम नहीं करता जब तक हम उसे बुलाते नहीं। अभी गीत गाया, पाकरू पाकरू बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाकरू। तो गूंगे नाल तो नहीं बोलता। जो गूंगे हैं दुआ नहीं कर सकते, उनके साथ पाकरू नहीं बोलता। वो कहता गला फाट चला और दरीगरम कर। जब हम उसे कहेंगे कि बोल, तब वो बोलेगा। जब वो हम कहेंगे कलाम कर, वो करेगा। जब आप जिंदगी जरूरियात में मायूस हो जाएंगे, अब आप उसे कहेंगे, तो तब वो आपकी जिंदगी के अंदर मुदाखलत करेगा। वो कभी भी ईमानदार को मजबूर नहीं करता। ईमानदार अपनी मर्जी के इंतखाबात के खिलाफ काम करे। और उसने कहा, उस आजादी की तरफ जोर देता है जहां कहीं खुदा का रूह है, वहां पर आजादी है। जहां पर खुदा का रूह है, वहां पर आजादी है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर पाक रूह है, तो फिर आप कौन आजाद हो। और जिन जिंदगियों के अंदर याद रखिए पाक रूह नहीं होता, वो जिंदगियां क्या होती हैं? गुलाम होती है। दुनिया की गुलाम, पैसे की गुलाम, हर चीज
जिंदगी उन्हें गुलाम बना लेती है। पागुर की एक हद है जो मैंने अभी बताया। उसने कहा इससे मालूम होता है कि खुदा और रूह कुद्दूस इसी हद तक ईमानदार पर इख्तियार रखता है और उसकी रहनुमाई करता है। जब हम कोई भी किसी बात का फैसला करते हैं, याद रखिए हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे फैसले हैं। हम हर रोज एक नया फैसला करते हैं, हम एक रोज नया इरादा करते हैं। हम पूरे हफ्ते के अंदर एक फैसला करते हैं कि इस संडे हम पूरे टाइम पर चर्च जाएंगे। कब? जब खुदा के घर में बैठे होते हैं तब हम वादा करते हैं कि आने वाले संडे हम टाइम पर आएंगे। लेकिन वादा बेवफा हो जाता है, वो वादा छूट जाता है। लेकिन क्यों छूट गया? कि वो वादा आपने किया लेकिन रूह कुद्दूस की रहनुमाई में नहीं किया। रूह कुद्दूस आपके साथ है। जब हम पाकुर को हम अपने उन सोचों के अंदर, अपने उन ख्यालों के अंदर उसको रखकर कहेंगे पाकुर तेरी रहनुमाई में, क्योंकि तू मेरा मददगार है, खुदा ने मुझे दिया है। पाकुर मैं चाहता हूं कि मेरी मदद कर, कि मैं हर इतवार वाले दिन खुदा के घर में मैं और मेरा खानदान बकैदगी से जा सके। हालेलुया। तब पाकुर क्या करता है? वो मददगार है और वो मदद करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि खुदा रूह नाप कर नहीं देता। खुदा रूह तो देता है, कैसे नहीं देता? नाप तोड़ के नहीं देता। उसने क्या कहा? डॉलों में फड़िया है, वो आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन कैसे? जब आपकी जिंदगी का वो बॉल खाली होगा, वो खाली होगा हर तरह की बदी से, हर तरह की नफरत से, हर तरह के गुनाह से, तकब्बर से, गुरूर से, घमंड से वो खाली होगा। और जब वो ढेलेगा तो एकदम करके उस आपकी जिंदगी के बर्तन के अंदर उतरना शुरू हो देगा। हमें रूह कुद्दूस से उतना ही मिलेगा जितना हम उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा दे देगा, वो देगा, लेकिन जितनी हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। बथेरे साधकों की कोशिश से नूरे फलक की मानव चमकेगी। हालेलुया। हमें कोशिश करनी चाहिए। चमकना तब है जब हम कोशिश करेंगे, मगर उसको हासिल करने के लिए हमें रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को उसको हवाले करना और उसके इख्तियार को कबूल करना होगा। पाकुर के हमें हवाले करना है। आज हम पाकुर के गीत गा रहे थे, रूह का लिबास दे, मांग रहे हैं ना, तो फिर मांगते रहिए। वो कहता तुमने अभी तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मैं तुम्हारी खुशी पूरी करूंगा। हम पैसा मांगते हैं, हम रिज़्क रोटी पानी मांगते हैं, हम घर मकान शिफा मांगते हैं, हम जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, सब कुछ मांगते हैं। लेकिन जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है हम वो मांगने से कतराते हैं। कलाम में लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को रूह कुद्दूस न देगा। छोड़ो जाने करो, सब कुछ छोड़ दो। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने मांगने वालों को रूह कुद्दूस न देगा। जब हम गाते हैं तो यही छोड़ जाते हैं, उस रूह कुद्दूस को भी छोड़ जाते हैं, उस रूहानी जिंदगी को भी यहीं पर छोड़ जाते हैं। और अगर साथ लेकर जाएंगे तो फिर एक दिन जरूर सोना मुआफ कर देगा और रूह कुद्दूस के साथ आपके बदनों को भी भर देगा। हालेलुया। याद रखिए वो कभी भी हमें हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर नहीं करता। वो नहीं मजबूर करता कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन हम जो कुछ करते हैं अगर हम बेहतरीन करते हैं तो वो हमारे साथ है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो पाकुर हमारे साथ नहीं होता, लेकिन वो हमें
گرنے سے بچاتا ہے. ہم گر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ ہمارے چلتا ہے, ساتھ دیکھیے گرنے سے بچاتا ہے. ہم گر رہے ہوتے ہیں, وہ ہاتھ رکھ کے ہمیں چلنا سکھاتا ہے. پروں پہ اٹھا لیا عقاب کی طرح تاکہ ہم کو چوٹ نہ لگے. ہمارے فیصلوں کے اندر وہ آتا ہے, لیکن جو ہمارے ٹھیک فیصلے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور جب ہم کوئی غلط فیصلے کرتے ہیں وہ ساتھ تو نہیں چلتا لیکن ہمیں سہارا ضرور دیتا ہے. راست باز ساتھ بار گر پڑتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے, پر شریر گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے. ہم 7 بار جب گرتے ہیں, ہم گناہ میں گرتے ہیں, ہم بدی میں گرتے ہیں, ہم گھمنڈ میں, غرور میں, تکبر میں ہم گر جاتے ہیں. ہم اللہ کے اندر اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی کوئی زندگی ہے, زندگی میں سے تنگ ہو جاتے ہیں, میں ایسی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا. اپنی زندگی کو کوستے ہیں, فیصلے کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے. زندگی نہیں ملتی ہے یسوع کے سوا. ہاللویا. تمہیں زندگی اگر بسر کرنی ہے, بجائے کہ ہم اپنی زندگی کو کوسیں, ہم اپنے کاموں کو کوسیں, اپنے بچوں کو کوسیں, اپنے کاروبار کو کوسیں, اس سے بہتر کہ یسوع کے پاس روح القدس کے وسیلے سے ہم اس زندگی کو گزارنا سیکھیں. سیکھنا تو ہے, جب تو کوئی سیکھے نا تو وہ کیوں کر سکھا سکتا ہے. خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ تیری زندگی پر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. بات کو زندگی کی کر رہا ہے, اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی پر وائس کرتا ہے زندگی تو تھوڑے دنوں کی ہے, زندگی تھوڑے دنوں کی ہے. جو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے اس کے اندر بھی جب ہم پاک روح کو لیں گے تو وہ ہماری زندگی کے اندر بھی آگے مداخلت کرے گا. ہاللویا. تو پاک روح کے لیے زوردار تعریف ہو جائے گی. فیصلہ لیجیے کہ آج کے بعد میں پاک روح کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی دعوت دوں گا. پاک روح تو آ, میری زندگی میں آ, میرے کاموں میں آ, میرے فیصلوں میں آ, میرے رہن سہن میں آ, میرے بچوں میں آ, تو میرے بیڑے چلی بنا لوں. بہت ساری جب ہم راست باز گرتے ہیں ہمیں سنبھالتا ہے. میں بھی کئی بار اپنی زندگی میں گرتا ہوں اور کیا کرتا ہے کہ پاک روح آ کے اس طرح کر کے مجھے سنبھالتا ہے. وعدہ ہے نا, وہ تمہارے لیے کھڑا ہے, وہ مجھے سنبھالتا بھی ہے اور پھر مجھے تربیت بھی کرتا ہے, پھر مجھے سکھاتا بھی ہے. گندیاں جھاڑیاں سب کا تڑکدا, گندیاں جھاڑیاں سب کا تڑکدا, ہر دل ردا پکڑو میرے نال, ہر دل ردا پکڑو میرے نال. ہو گئی لوگوں میری جند خوشحال, ہو گئی لوگوں میری جند خوشحال, ہر دل ردا پکڑو میرے نال. ہاللویا. تو گندیاں جہاندیاں سب کا اٹھا ہے, گایا کرو, بولا کرو, کہا کرو, ہر ویلے رہتا پکڑو میرے نام ہے. بولنے سے ڈرتا ہے, بولیں گے وہ آپ کے ساتھ, آپ کی زندگی کے ساتھ. اگر اولاد نہیں ہے, کانٹپن ہے, بنجر پن ہے, کہیں پکڑو تو میرے ساتھ ہے. اگر کشیدہ بیماریوں بدنوں کو چھوڑ کر نہیں کرتی, کہیں پکڑو میری رہنمائی کا شفایت ملے گا. وہ اسی ساتھ ایک رشتہ قائم کیجیے. خدا نے یشوع سے کہا, یشوع دیکھ میرا رشتہ تیرے استاد کے ساتھ موسیٰ
साथ बेहतरीन था। और कहने लगा कि देख वो मेरे साथ साथ चलता था। कहने लगा अगर तू मेरे साथ साथ चले तो देख जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। वादा देखो, कहना जिंदगी पर कोई भी शख्स, कोई लुटेरा, कोई तुझे मारने वाला, कोई तुझे दुख देने वाला, कोई तेरी बदलों के अंदर बीमारियों को लेकर आने वाला, कोई तेरी जिंदगी में ताबीज, धागा, जादूगरी, इल्म, जोर, कुछ भी करने वाला कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम ना होगा। और कहने लगा कोई अफसूस तेरे घर पर, तेरे नगर में ना चलना पाएगा, तेरे नगर से नहीं चलना पाएगा। कहने लगे वादा है। ये उसने वादा किया। क्या लगा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ चलूंगा। मैं ना तुझे खबरदार हूंगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा। यशवा ने खुदा की आवाज को सुना, जिसके कान को सुन लेकर प्रभु कलीसियों से क्या फरमाता है। हमें ऐसे कान चाहिए कि सुने, हमारा ज्ञान खुदा की उस आवाज की तरफ होना चाहिए। खुदा आसमान से बोला, कहने लगा कोई तो हो जिसे मैं भेजूं। आज भी खुदा आसमान के ऊपर से, तीसरे आसमान से जहां खुदा का तख्त है, वो रोज जब मैं बेदार होता हूं और वो कहता है कि सुन कोई तो हो जिसे मैं भेजूं। यशायाह नबी नीचे जमीन पर था, उसे खुदा की आवाज आई। याद रखिए, सबको खुदा की आवाज नहीं आती, सबको खुदा की आवाज नहीं आती। कलाम लगे जिसके रूहानी कान को आज जरूरत है। अगर खुदा की आवाज को हम नहीं सुनते तो फिर दुआ कीजिए कि खुदावन मुझे सुनने वाले कान दीजिए। हालेलुया। तो झट से यशायाह नबी बोला, खुदावन मैंने तेरी आवाज को सुना है, मुझे भेज, मैं हाजिर हूं। हालेलुया। आज लोड़े से गल थी कि जो खुदा की आवाज सिरे सिरे आवे तो कि ये खुदावन मैं उठना वा, मैं तेरी बात सुन लूंगा। आज मैं कितने था, आज मैंने किस घर के में, आज किन लोगों के पास मैंने जाना है। खुदावन रहनुमाई करता है, खुदावन बताता है कि तूने आज क्या करना है, किन लोगों के पास कहां मुनादी करी, कौन सा कलाम सुनाना। खुदावन बोलता, खुदावन कलाम करता है, बोल मेरे नर, बोल मेरे नर, पाखरू कहेंगे, पाखरू बोलेगा। वो उसके साथ बोला। ज़बूर 90 के अंदर लिखा है हमारी उम्र, हमारी जिंदगी की मयाद 70 वर्ष है। दाऊद कहता है कि हमारी जिंदगी 70 है, इससे ज्यादा नहीं है जो ठहराई गई है। हाँ, अगर जिस्म के अंदर लिखा है कुव्वत हो तो फिर 80, जिंदगी इंडियन 70 या 80, यही जिंदगी है। हमें बहुत अपनी जिंदगी के अंदर, मैं जब इसके ऊपर गौर कर रहा था तो मैं खुदावन से कह रहा था, तो खुदावन मैं 63 साल का हो गया, 60 अगर 70 है तो फिर 70, बाकी अगर मेरे अंदर कुव्वत हो तो 80 है। तो फिर क्या मैंने तेरा तेरे टाइम देता है, इसके अंदर तू मेरी भेड़े चला, तू मेरी भेड़े चला। खुदा ने जो वक्त दिया है, यही आप अपनी जिंदगी के अंदर भी देख सकते हैं कि कितनी मेरी उम्र गुजरेगी। अभी पिछले हफ्ते एक खानदान के अंदर उन्होंने 25 साल सिल्वर जुबली मनाई, उनकी शादी को 25 साल हो गए। मैंने जब अपनी जिंदगी पर गौर किया तो मैं देख रहा था अपने आप पर भी मेरे तकरीबन 37 साल गुजर गए। और मैं देख रहा था क्या सिल्वर तो हो गई, गोल्डन आने की नहीं, 50 साल के बाद गोल्डन आती है। हालेलुया। तो खुदा के सूरज मांगना चाहिए, तुमने अभी तक मेरे नाम से
तो आपसे कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो बड़ी खुशी पूरी होगी। अपनी कौन सी साल आज मैं नीचे जब हम फैमिली के अंदर बच्चों के साथ था, मेरे बेटे की भी शादी की सालगिरह थी 22 तारीख। हाँ, कितने साल हो गए अभी शादी को? 3 साल। 3 आए, फिर 4, 5, 6 तरीके दिन आएगा 25, शायद हम हो या ना हो, लेकिन ये जरूर मनाएगा। मैं दुआ देता हूँ कि याद रखें जो खुदा ने जिंदगी के दिन दिए हैं उनकी। मेरी 26 अप्रैल को मेरी भी शादी की सालगिरह, और ये जिंदगी है, जिंदगी नहीं मिलती, ये सिलसिला, यही वो जिंदगी है जिसको हमने गुजारना है। और हम कैसे अपनी जिंदगियों को बताएं। पौलुस रसूल इबादत 3:15 में कहता है, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया। यीशु हमारी जिंदगी का मालिक है, वो मालिक है। कौन? खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी का मालिक है। कैसे? कि उसने अपना खून बहाकर सलीब पर जान देकर क्या किया? हमें मोल ले लिया है, उसने खरीद लिया है। अब याद रखिए, कभी ना सोचना कि हम कोई किसी और की मलकियत है। हम हमारा वो मालिक है, उसने हमारी कीमत दी है। और किससे दी है? अपने खून से, बेशबहा खून बहाकर, अपनी जान देकर उसने हमें मोल ले लिया है। और हमें क्या दी है? जिंदगी दी है। कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़िया है कि जब लाजर खुदावंद में सो गया तो उनकी बहनें बड़ी बावली हो गई, मार्था, मरियम, कि हमारा भाई मर गया है। और जब कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना 4 बाब और उसकी 6 ज्ञान, जब मैं कलाम मुकद्दस में पढ़ा तो लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया उन बहनों को जो खुदावंद के लिए मुंतजिर थी और खुदा उनसे बात कर रहा था। मैं कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसके 11 बाब 17 से लेकर मैं कलाम मुकद्दस में से आपके लिए पढ़ने चाहता हूँ, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। कलाम में लिखा है, बस यीशु को आखिर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीब 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में पहुंच रही बैठी थी। और मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं। हालेलुया। उसने कहा, देख मार्था, तू नहीं जानती जिससे तू बात करती है वो कौन है। वो तो क़यामत भी है, हाँ, और जिंदगी भी है। यीशु जिंदगी है। वो हमारी रूह, हमारी जान, हमारे बदन, हमारे लंगर का वो हिस्सा है। उसने उसे कह दिया, मार्था, तू नहीं जानती कि जिससे तू बात कर रही है वो क़यामत है, वो जिंदगी भी है, वो मौत भी है, और जिंदगी देने वाला मैं ही हूँ जो से तू बात कर रही है। और कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आज खुदावन इस कलाम के वसीले से हमसे बोल रहा है, हमसे कलाम कर रहा है। रूह की तहरीक के वसीले से नबूवती कलाम है ये, वो हमें बयान कर रहा है, जिंदों से बात कर रहा है। वो हम जो जिंदा बदनों के अंदर हमसे बोल रहा है, हमसे कलाम कर रहा है। वो कह रहा है, अगर मर भी जाओगे और अगर यीशु मसीह में हो तो फिर कहाँ रहोगे? जिंदा रहोगे। हालेलुया। आपके पास वादा है, मेरे पास भी वादा है कि जब मैं
सोऊंगा तो खुदा यीशु मसीह में जिंदा रहूंगा। जोरदार ताली बजाइए। यीशु खूबसूरत वादा कर लिए और वो कहने लगा जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर यकीन रखती है? उस वक्त उसने अपनी आंखों से देख लिया था, उसे भाई को उसने जिंदा कर दिया। 4 दिन के मुर्दा को उसने कहा अलाज़र बाहर आ, अब वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। वो जिंदा है, जिंदा रहेगा और जिंदा करता रहेगा। और उसने से कहा हाय खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा यीशु जो दुनिया में आने को था वो तू ही है। ईमान लाना है जिंदगी के अंदर। अगर आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर नाकामियाँ हैं, मेरी जिंदगी के अंदर झगड़े, घरों के अंदर झगड़े, नफरतें हैं, मिटती नहीं, दुश्मन बढ़ते जाते हैं, काम नहीं होते, हालात बदलते नहीं हैं, दुआएं करते हैं, चेंज नहीं होते, तो भी उस जिंदगी के मालिक को जिसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि कलाम के अंदर वादे हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनको हमें जानना है और उनके वसीले से हमें सीखना है। कलाम मुकद्दस में बहुत खूबसूरत वादे हैं जिंदगी को पाने के लिए। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर लिखा है कि जो अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहता है, पत्रस भी हमें सिखाते हैं। ये कलाम मुकद्दस में देखें कि हमें पत्रस क्या पैगाम देता है। 10 के अंदर लिखा है चुनांचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है। पत्रस क्या कह रहा है? चुनांचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है। क्या आप अपनी जिंदगी से खुश होना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं या अच्छे दिनों के मुंतजिर हैं या आस लगाकर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं? आप देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं, वो बादल हैं, घटाए हैं, वो मारने वाले और हलाक करने वाले हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती, हम जो कदम उठाते हैं वो हो नहीं पाते, हमारे हाथों के अंदर ब्लेसिंग नहीं, हम जिस काम को हाथ डालते हैं उनके अंदर बरकत नहीं आती, बहुत सारे किचन के काम जल जाते हैं, बहुत सारे खाने खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें फेल इलेक्ट्रॉन जब हाथ लगाते जल जाती है। जिंदगी जड़ी चीज पकड़ ली, जड़ी चीज में आता नहीं, वो इतना नुकसान करता है। जिसको आप चीज को छूते हो उसमें जिंदगी नहीं आती। हाथ ब्लेस नहीं, आपके हाथों के अंदर जिंदगी नहीं, आपके कामों के अंदर जिंदगी नहीं है, बदन कमजोर है, बीमारियां हैं और रोग है, लाइलाज बीमारियां को छोड़ती नहीं। लेकिन कलाम के अंदर पत्रस कहता है चुनांचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है। कलाम रूह कुद्दस के वसीले से कलाम हमारे से बोलता और वो सिखाना चाहता है कि अगर ऐसा है, जिंदगी के अंदर खुशी नहीं है, जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, जिंदगी के अंदर बहाली नहीं है, सरफराजी नहीं है, रुसवाई है, लोग हमको निरोला कहते हैं कि लोग तो रोग हैं, तो कहता है लोग रोग हैं। याद रखिए, लोगों की तरफ न जाइएगा, लोग मार डालते हैं और लोग हलाक करते हैं और लोग जिंदगी नहीं देते। जिंदगी तो यीशु के अलावा नहीं है, जिंदगी यीशु के अलावा नहीं है। या कहता है कैसे मिलती है? वो कहने लगा अगर जिंदगी के अच्छे दिन देखना चाहता है तो सबसे पहली बात जो वो हमें सिखाता है वो ये है कि जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रख। आप अगर जिंदगी के अंदर फेल हैं तो फिर अपनी जुबान की वजह से तो अपने मुंह की बातों में फंसा और अपने मुंह की बातों में पकड़ा गया। बहुत सारी ऐसी बातें
جو میں نہیں کہنی، بہت سارے ایسے کام جو میں نہیں کرنے، جب وہ کرتے ہیں نصیب پڑے جانے اور اچھے دن دور ہو جاتے ہیں۔ ایک فاصلہ ہمارا بڑھ جاتا ہے جب وہ زبان جس کے لیے پطرس بیان کر رہا ہے، کہہ رہا زبان کو بدی سے اور رونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھ، بدی سے کنارہ کر اور نیکی کو عمل میں لا۔ کہتا بدی میں چھڑ اور کیا کر؟ نیکی کر۔ آپ نیکی کریں گے، نیکی کو آپ کی زندگی کے اندر لے کر آئے گی۔ آپ نیک کام کرو گے، بہت سارے نیکی لوگ آپ کے ساتھ کریں گے۔ جب آپ لوگوں سے آپ نفرت کریں گے تو نفرت کو بڑھاتی ہے، اور بہت سارے نفرت کرنے والے بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ اگر زندگی کے اندر اچھے دن نہیں ہے، زندگی اچھی نہیں گزر رہی، تو پھر کہتا ہے اپنی زبان کا سنبھال، اپنی زبان کو سنبھال۔ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھ، اور بدی سے کنارہ کر، نیکی کو عمل میں رکھ، اور صلح کا تعلق اور اس کی کوشش میں رہے۔ کیا کرے؟ صلح رکھ، اپنے باپ کے ساتھ صلح رکھ، اپنی ماں کے ساتھ صلح رکھ، اپنی بہنوں کے ساتھ صلح رکھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح رکھ، اپنے گھر اور گھرانے کے ساتھ صلح رکھ، اپنے چرچ کے ساتھ صلح رکھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ صلح رکھ، اپنے ملک قوم کے ساتھ صلح رکھ۔ اور اگر آج ہمارے ملک یا پاکستان کے اندر صلح نہیں ہے تو پھر اسی لیے ملک کیا ہے؟ اس جگہ پر، اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں تباہی سامنے آ کھڑی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر سب آپس میں صلح کے طالب ہو اور صلح کی کوشش کرے۔ اور میری دعا ہے کہ آنے والے مئی اور جون کے اندر پاکستان کی رہائی ہونے کو جا رہی ہے۔ ہاللیلویہ! پاکستان کے لیے زوردار تالی بجائیے۔ مئی اور جون کے اندر پاکستان کی رہائی ہونے والی ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! وہ کہنے لگا کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا میں راست باز ہوں؟ کیا میرے خداوند کی راست بازی کو پورا کیا؟ کیا میں اس راست بازی کے اوپر چل رہا ہوں؟ کیا میں اس راست بازی کے اوپر چل رہی ہوں؟ کیا میں اس راست بازی کو پورا کر رہی ہوں؟ کیا میں مقدس ہوں؟ کیونکہ خدا مقدسوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں پر ہی کان لگاتا ہے۔ اگر دعائیں نہیں سنی جاتی تو پھر کہیں نہ کہیں تو کمی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہگاروں کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ سیموئیل کہتا ہے کہ اگر میں دعا نہ کروں تو کیا گناہ کروں؟ جب آپ دعا نہیں کرو گے، جب آپ کلام مقدس کو نہیں پڑھو گے، جب کلام مقدس کو نہیں سناؤ گے تو پھر گناہ کرو گے، دعا نہیں کرو گے۔ اور اگر پڑھو گے تو پھر کیا کہو؟ پھر وہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی دعاؤں کا وہ جواب بھی دے گا، وہ اتر بھی دے گا۔ لکھا ہے مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ اگر راست بازوں کی دعاؤں سنتا، مقدسوں کی دعاؤں سنتا، تو پھر ایک بات اور بھی کہتا ہے، مگر خداوند کی نگاہ میں ہے وہ بدکار جو خدا سے دور ہے، جو نیکی کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے، کہتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں ہے۔ بات سمجھے کہ اگر ایسا نہیں تو ہم خدا کی نظر میں نہیں ہیں۔ کلام مقدس کے اندر آج ہم نے سیکھا، ہاں اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ تو اگر سزائیں اٹھا رہے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ مسیح میں نہیں ہے۔ یہ تو کلام کی بات ہے، کلام کے اندر ہے، درج ہے کہ مسیح کے اندر جو ہے، مسیح کے اندر تب تک نہیں ہوتے جب تک ہم اس کی راست بازی کو پورا نہیں کرتے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں تو گناہوں کی معافی کے لیے تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہ راست بازی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔
क्योंकि रात वालों की दुआओं पर उसके कान लगे हुए हैं। और जब हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो सजाएं जो हैं वो कट जाती हैं, खबीस उनके दरमियान में से कट जाता है। कहना देख मैंने खबीस को तेरे और तेरे घराने के अंदर से मैंने साफ काट दिया। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए। उसने कहा देख ले आज मैंने खबीस को तेरे घराने में से साफ मैंने काट डाला है। वो कहने लगा सुनिए गौर से, कलाम की बेद की बातें हैं। कहने लगा जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। हमें अपने जिस्मों के मुताबिक नहीं चलना बल्कि रूह के मुताबिक हमें चलना है, तब हम रूहानी कहलाएंगे। कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है। कहने लगा लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। कैसे ख्याल? खुदा के ख्याल, वो हर वक्त सोचते हैं क्या चीज है। मैंने आज दुआ नहीं की, मैंने दुआ कर दी। वो सोचता रहता है कि मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने खुदा के घर में 9:30 बजे टाइम में मैं ठीक टाइम पर पहुंचा। उसकी सोच है। पाकरू आपकी सोचों पर जाएगा। जो आप सोचते हो, अपोजिट ऑफ सोचते हो तो पाकरू उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। और वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी लोग सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो फिर बड़ी फिक्र की जरूरत है। मेरे बच्चे चर्च नहीं जाते, मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे वीडियो गेम, रेसलिंग और तरह तरह की गेम्स के अंदर जाते हैं। बड़ी फिक्र की लम्हा है। इन दोनों में बातों को सोचने की फिक्र है। और कहने लगा और जो जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। कहने लगा जो जिस्मानी जिंदगियां बसर करते हैं वो मौत के अंदर है, गुनाह की मजदूरी मौत है, वो उसके अंदर खड़े हैं। मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है। कौन सी नियत? जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है। ये कलाम के अंदर लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये कलाम में लिखा है। वो कहने लगा जो जिस्मानी है उन्होंने नियत भी जिस्मानी, कहने लगे नियत ही है जिंदगी, इसलिए तो गले हमें कौन सी नियत रखनी है? रूहानी नियत रखनी। सुनिए रूहानी नियत के लिए कहता है क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। दुनिया को तो खुश कर सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं खुश कर सकते। अपने रिश्ते नातों को, बहन भाइयों, अजीजों को खुश कर सकते हैं। या देखिए दुनिया की शक्ल तो बदलती जाती है, वो कहता है कि दुनिया की हम शक्ल ना बदलें। हमें हम मसीह में है, हम पर अब सजा का हुक्म नहीं है। आइए आज हमने सीखा है कि हमें कैसे रूह कुदस के वसीले से जिंदगियां बसर करनी चाहिए। आइए अपने कदमों पे खड़े हो गए और हम खुदा से दुआ करेंगे कि खुदावन मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि रूह कुदस के वसीले से मैं अपनी जिंदगी को बसर करूँ। मेरे बच्चे जिंदगी को बसर, मेरा घर और घराना, मेरी गाँव, मेरा शहर रूह कुदस के वसीले से जिंदगियां बसर करना सीख जाए। सब अपने हाथों को बढ़ाएंगे और अपने क्रूस गाएंगे और उसके बाद उस इबादत के अंदर खड़े होकर खुदावंद से आगे मांगेंगे कि खुदावंद मुझे भी बरकत दे, मैं रूह कुदस के वसीले से जिंदगी बसर करना सीख